Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। We welcome you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु के नाम से हम हर एक का स्वागत करते हैं A warm welcome from the heart of Christ Church. और हार्ट ऑफ क्राइस्ट की कलीसिया से हम हर एक का स्वागत करते हैं। And we hope that you all have been blessed during this week. मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब इस पूरे हफ्ते आशीषित थे। And thank you for joining us live. और धन्यवाद आप हमारे साथ इस लाइव स्ट्रीम में मौजूद हैं। So before we could begin this service, can you please turn to your Bibles from the book of Lamentations? और आए हम लैमेंटेशंस की किताब खोलेंगे। The book of Lamentations, chapter 3, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय beginning from verse 22 to 27. 22 से लेकर पढ़ेंगे। So Lamentations, chapter 3, beginning from verse 22 to 27. To the Lord's mercies we are not consumed, because his compassion fail not. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore I hope in him. The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. It is good that one should hope and wait quietly for the salvation of the Lord. It is good for a man to bear the yoke in his youth. Amen. हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति बोध वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा बाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। Hallelujah. यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। Amen. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। As the word says in 25, the Lord is good to those who wait for him. और 25 वचन में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। So how many of us are waiting? कितने सारे लोग बाट जोते हैं? As we still have 4 days remaining for this entire year. और 4 दिन बाकी है हमारे हाथ में इस पूरे साल खत्म होने से पहले। So are we seeking him earnestly and waiting patiently? क्या हम बाट जो रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में? Come on, let us look up to the Lord in prayer as we begin this service. Let us keep each and everything into his hands. और आए परमेश्वर की ओर देखिए और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। Hallelujah. We thank you, Jesus, for this time you have given us. We thank you for your grace and your mercies upon us. परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए प्रभु। Lord, you said, ask and it shall be given, seek you shall find, and knock and the doors shall be opened, Lord. प्रभु आपने कहा मांगो तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुझे तेरे लिए खोला जाएगा। Lord, whatever the prayers which we are praying, even though it might not be answered by you, Father God, but still we have 4 more days remaining. प्रभु आप जानते हैं कि अगर और भी हमारी आशाएं हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो हम विश्वास करते हैं कि 4 दिन बाकी है और भी कार्य आप हमारे जीवन में करने के लिए। Because your word says that nothing is impossible through you, Lord. क्योंकि प्रभु आपने कहा आपके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। Lord, we look up to you earnestly, Lord. और प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं। Lord, we keep the service into your precious hands. You take total control, Lord. प्रभु ये पूरे सभा को हम आपके हाथों में देते हैं, आप चलाइए। Lead us by your spirit so that we can worship you in truth and in spirit, Lord. आत्मा में हमें चलाइए प्रभु, ताकि आत्मा सच्चाई से हम आपकी आराधना करें। Lord, we also keep Pastor into your precious hands. Lord, lead him in his word so that he will share your word, oh Father God. पासवान को भी आपके हाथ में देते हैं ताकि वो आपके वचन को हम सबके साथ बांटे। We also keep all those precious people who are watching us live. Lord, you take total control in their lives. और हर एक जन जो ये लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं प्रभु, हर एक आत्माओं को आपके हाथ में देते हैं। Lord, nothing is impossible through you, Lord. आपके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं। Lord, we keep our friends, our families, our parents, our siblings into your precious hands, Lord. प्रभु हमारे पूरे परिवार, हमारे दोस्तों को आपके हाथ में देते हैं। Lord, we thank you for this grace that you have given us to witness as we're going to close this entire year next 4 days. आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, जो गवाही हम देख रहे हैं और खड़े हैं प्रभु। As we reflect all the months which we have passed by, Lord, we give you all the glory for that, Lord. हर महीने के लिए जो गया है, हर एक महीने के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। In spite of all the pandemics, in spite of all the uncertainties, Lord, you have taken total control of our lives, Lord. सारी बीमारियों के बीच में भी प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, it's not by our will, it's not by our safety, but it's by your grace upon us. प्रभु आपके अनुग्रह से हम सुरक्षित हैं, वो हमारे कारण नहीं है। Lord, as we commit our lives into your precious hands, you take total control of our lives. जैसे हम अपने
आपको समर्पित करते हैं, आप पूरी रीति से हमारे जीवन को चलाइए। Once again, we keep our service into your precious hands. You take total control. हमारी पूरी सभा को हम आपके हाथों में देते हैं, आप चलाइए। We keep the worship team. You take total control, Lord. पूरे वर्शिप टीम को आपके हाथों में देते हैं, प्रभु आप चलाइए। And let your name be glorified in and through our works as और well. प्रभु हमारे जीवन द्वारा आपके नाम की महिमा We हो। thank you once again for this time you have given us. और ये समय जो आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। We give you all the glory and honor, Father. सारी स्तुति महिमा आपको देता है। We humbly pray in Jesus' most precious name. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति So, हो। how many of you are excited to worship this wonderful moment? और कितने सारे लोग आज उत्साहित हैं इस समय के लिए। जो And if परमेश्वर- you're one among them, come on, rise up and let us worship the Lord in true और अगर thanksgiving. आप उनमें से के बीच हैं तो आए खड़े रह जाएंगे परमेश्वर की आराधना में। And we believe that the Lord is going to speak to you through your word. और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु उनके वचन द्वारा हमसे बात करेगा। Hallelujah. Amen. आमीन। Worship the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. हम सब जानते हैं कि परमेश्वर सेना में यहोवा है और वो हमारे संग है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमारे राजा है, वो सर्वशक्तिमान है। आमीन। इसलिए हम उनको आराधना करेंगे, वो योग्य है। आइए खोल के सब लोग ये गीत जानते हैं। आइए ताली बजा के स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। ओ जय जयकार, जय जयकार करी। उस पर जिसका भरोसा है वो कभी न गिरेगा, चाहे बीमारी गरीबी जो कुछ भी आए वो खड़ा रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का सावन, परमेश्वर के साथ है। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन,
हमारा परमेश्वर जय के योग्य है। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, इस सभी इस परिस्थिति के बीच में भी हमारा परमेश्वर जय के योग्य है। हालेलुया। जो कुछ भी हमारे जीवन में परमेश्वर करता है वो सब कुछ अपनी महिमा के लिए करता है। जो लोग परमेश्वर यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर बाट जोड़ते हैं, तो परमेश्वर हर एक के लिए एक नया आशीष और एक नया सामर्थ परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। Those who wait in the Lord shall renew their strength। आज भी जो वचन हमने पढ़ा है, परमेश्वर ने हमसे बात किया है कि परमेश्वर जो भी उनके लिए बाट जोड़ते हैं, जो भी उन पर साइलेंटली चुपचाप वेट करते हैं, उनके लिए प्रभु महान कार्य को तैयार करके रखा है। हालेलुया। कितने लोग अब विश्वास करते हैं? स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी उनकी आसन है, और आज भी उनके आसन के पास हम उनकी महिमा करने आए हैं। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आज भी आपके जीवन में एक महान कार्य करने के लिए योग्य है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पर ठहरते हैं, विश्वास के साथ वेट करते हैं, ये पूरे साल, आज ये पूरे साल का आखिरी संडे है, ये पूरे साल का आखिरी रविवार है, हम खुश मना रहे हैं। वी आर हैप्पी एंड वी आर प्रेजिंग द लॉर्ड कि आज भी प्रभु ये पूरे साल हमारी कलीसिया को संभाले, वो हमारे साथ रहे, हमें चलाते रहे, और उनका अभिषेक, उनका हाथ, उनका पवित्र आत्मा हमेशा हमारे संग है। हालेलुया। ये इतना महामारी के बीच में, इस पैंडेमिक के बीच में भी प्रभु ने हमें संभाला, कलीसिया होकर हमें खड़ा किया। परमेश्वर ने हमारे जो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया, वचन दिया, हमें प्रभु ने एनकरेज किया। इसलिए जोरदार ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। जब जनवरी 1 को जब हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, किसी को भी पता नहीं था कि ऐसे एक महामारी आकर सभी कलीसिया को, नहीं तो लोगों को, दुनिया को ऐसे अफेक्ट करेगा। पर परमेश्वर ने फिर भी हम सबको इकट्ठा रखा। परमेश्वर ने फिर भी हम पर कृपा दिखाया, दया दिखाया, हम सब पर अपना करुणा दिखाया। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया। लेट्स से थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब प्रभु कहते हैं कि तुम रुको, बाट जो, चुपचाप बैठो, बी रेड, बी साइलेंटली वेटिंग फॉर द लॉर्ड। बहुत बार ऐसे होता है जब हम रुकते हैं तो भी हम बात करते रहते हैं, नहीं तो ग्रम्बल करते रहते हैं, हम गिड़गिड़ाते रहते हैं। पर बाइबल कहता है कि तुम थोड़ा चुप रहकर रुको। While you wait, you keep silent because God knows what He must do. Hallelujah. परमेश्वर जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हम परमेश्वर को कहते हैं कि प्रभु ऐसे कर लो, वैसे कर लो, हम प्रभु को ऑप्शंस देते हैं। पर ये महामारी के समय में परमेश्वर ने सबको बोला कि साइलेंट रहो, देखो, जस्ट वेट ऑन द लॉर्ड। बाइबल में जब नोआ अपने परिवार के साथ वो नाव में था, when he was in the ark with his whole family, and सभी पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ वो था, उसको भी पता नहीं था कि कितने दिन वो बारिश होने वाली थी। प्रभु ने तो बोला था कि मैं पूरा दुनिया को नष्ट करूंगा, पर प्रभु ने ये नहीं कहा कि कब तक। Hallelujah. God said He's going to destroy the world. He's going to save Noah and his family. पर कब तक, by when, till when, प्रभु ने उसको नहीं बताया। But as they were waiting on the Lord, जैसे वो रुके थे कि कब ये बाढ़ पूरा रुकेगा, कब जमीन सूख जाएगी और कब हम सब बाहर निकलेंगे, जैसे वो रुके थे, patiently they were waiting. The Bible says God remembered Noah and his family. प्रभु ने नूह और उनके परिवार को याद किया। हालेलुया। जैसे हम परमेश्वर पे रुकते हैं, जैसे उन पर हम बाट जोड़ते हैं, जैसे हम उनकी इच्छा करते रहते हैं, प्रभु हमें याद करता है। He remembers us. हालेलुया। आज भी ये अच्छे साल, पूरे साल के अंत पर अच्छे दिन में परमेश्वर की, यहोवा ने जो दिन बनाया है, उसमें हम जैसे परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। प्रभु, आपने जो भी मकसद, कार्य आपने हमारे लिए लिख के रखा है, वो सब हमारे जीवन में वो पूरा हो जाए। As we are waiting on the Lord, as we praise the Lord, as we worship the Lord, आज भी रविवार के समय जैसे आप हमारे साथ जुड़े हैं, पूरा विश्वास के साथ आप रहिए, परमेश्वर को धन्यवाद कहते रहे। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आने वाले दिनों में महान कार्य आपके जीवन में करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम बाट जोड़ेंगे, हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते रहेंगे। While we wait on the Lord, we'll start thanking Him. Lord Jesus, thank you that you work all things for our good. आप सभी चीज अच्छे के लिए करते हैं प्रभु पिता, आप सभी चीज अच्छे के लिए करते हैं प्रभु पिता। Hallelujah. All that you do is for our good, Lord Jesus. बात जोड़ना बहुत बार तकलीफ होता है। It's very hard to wait many a times. पर प्रभु कहते हैं तुम मेरे लिए रुको, मैंने जो वादा किया है मैं पूरा करता हूँ। What I have promised I will fulfill. इब्राहिम को परमेश्वर ने एक वादा दिया कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा। I will give you a son.
I'll multiply your descendants. पर इब्राहिम को उसके लिए रुकना पड़ा। आज भी जैसे परमेश्वर में रुकते हैं, as we wait on the Lord to perform His miracles, to perform His work, to fulfill His promises, to do all that He wills, we will wait patiently for the Lord and say, Lord, we believe that you work all things together for our good. हम विश्वास करते हैं प्रभु की सारी चीज आप हमारे अच्छे के लिए करेंगे। We believe, Lord Jesus, that you are still at work, कि आप काम कर रहे हैं प्रभु हमारे प्रति। You are doing something for us. Thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord Daddy. We praise you, Lord Jesus. Worship you, Lord Father. जब तेरा ना हो कोई सहारा है एक नाम, जो तेरा सहारा, जब तेरा ना हो कोई किनारा है एक नाम, जो तेरा किनारा, जब तू सोची निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल, जब तू सोची निर्बल है तू, है एक नाम जो होगा तेरा बल। यीशु पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जब अपनों ने छोड़ा, एक नाम है जो सीने से रखता है। जब अपनों ने छोड़ा तुझे, है एक नाम जो सीने से रखता तुझे, जब तेरे शत्रु गिरे तुझे, है एक नाम बचाएगा जो तुझे, जब सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम कहना शुरू हुआ, जब सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू हुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, पुकारो तुम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
छोड़ा। परमेश्वर हमें सीने से रखता है। हालेलुया। हमें जब मुसीबत में है हम, तब परमेश्वर हमें बचाता है। आवाज उठा के परमेश्वर ये पूरी साल आपने हमें नहीं छोड़ा, ये पूरे साल आपने हमें सुरक्षित रखा अपने सीने में प्रभु। ये पूरे साल आपने हमें बचा कर रखा है और अंत तक बचा कर रखेंगे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं ईश्वर। आए विश्वास से अपने मुंह खोल के हम कहेंगे, जब अपनों ने छोड़ा, जब अपनों ने छोड़ा तुझे, है एक नाम जो सीने से रखता तुझे। जब तेरे शत्रु गिरे तुझे, है एक नाम बचाएगा जो तुझे। जो सबने कहा होगा तेरा, है एक नाम जो कहता शुरू हुआ। जब सबने कहा होगा तेरा अंत, है एक नाम जो कहता शुरू हुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। हम छोटा था बचा यीशु हम धन्यवाद करेंगे, वो यीशु नाम के लिए धन्यवाद करेंगे। Let's say thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah। धन्यवाद यीशु, हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु। Come on, lift your voices and say thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus। We love you Lord Daddy, we love you Lord Jesus। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Lord Father। धन्यवाद करते सुंदर समय जो आपने दिया प्रभु। आप महान है, सर्वशक्तिमान है, आपके सम्मान कोई नहीं है। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के रविवार के दिन में भी आपने हम सबको इकट्ठा किया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं यीशु। एक मन में एक कलीसिया होकर मांगते हैं, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरा हो जाए यीशु। ये पूरे साल 2020 में आपका हाथ हमारे साथ था, इसकी वजह से हम जी पाए, इसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए, उसके लिए धन्यवाद। हर दुख, हर तकलीफ में आपका हाथ ने हमें कभी नहीं छोड़ा यीशु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और ये अंतिम ये साल अंत होने के पहले हम मांगते हैं हमारे जीवन में एक नया वादा शुरू हो जाए, हमारे जीवन में एक नया आशीष आए, हमारे जीवन में एक नया बुलाहट आए प्रभु। Something new, Lord Father. Do something new in our life, Lord Jesus. Before this year ends, we pray, we give all our petitions into your hands, Lord. Do something new, Lord Father. Do something new, Lord Jesus. आए कल से अपने मुंह खोल के कहेंगे, Do something new, Lord. परमेश्वर कुछ नया मेरे जीवन में कीजिए, एक नया कार्य उत्पन्न होने दे मेरे जीवन में प्रभु, एक नया बीज मेरे जीवन में डालिए यीशु। जैसे हम 2021 में प्रवेश करते हैं, as we enter 2021, we pray, Lord Father,
May we enter with joy and victory, Lord Father. हम विजय के गीत से प्रवेश करने के लिए हमें मदद कीजिए। अब ऐसे ही करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन के लिए धन्यवाद। सारे शैतान की ताकत को हम यीशु के नाम से, हर रुकावटों को हम यीशु के नाम से बाहर निकालते हैं। आपके नाम की महिमा हो यीशु। जैसे आज भी हम वचन को सुनेंगे, पासवान द्वार हमसे बात कीजिए। हमारी जीवन के लिए क्या जरूरत है आप जानते हैं यीशु। उनको ढक के आप उनके द्वार हमसे बात कीजिए। समझने के लिए हृदय हरे को दीजिए। सारी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, गौरव हम केवल यीशु नाम को देते हैं। We give you all the glory, honor and praise। यीशु मसीह की पवित्र, अति पवित्र नाम से सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय जीवित पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आई जोरदार ताली बजा के हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जीवित है। आमेन। हालेलुया। आप सबका स्वागत हम यीशु मसीह के नाम में करना चाहते हैं द हार्ट ऑफ क्राइस्ट चर्च सर्विस की लाइव स्ट्रीम पर। आप जैसे हमारे साथ जुड़े हैं, आप ये वीडियो को अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी परमेश्वर का वचन सुनकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। पासवान राज और गीजा आकर हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का दी पवित्र नाम से आप सबको मैं आशीष देता हूँ। I bless you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ। हम विश्वास करते हैं प्रभु आप सबको संभाल के रखा है और प्रभु का आशीष तुम्हारे साथ में करके हम विश्वास करते हैं। And I believe that the Lord is with you and His blessings are upon you। अभी सब जन क्रिसमस सेलिब्रेशन करके बैठा है। Everybody has been celebrating Christmas। अभी जो यूरोप कंट्री और यूएसए, यूके ऐसे सब जगह में सितंबर एंड से लेके जनवरी मिडिल तक जो क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं। And we see that the European countries people celebrate Christmas. They begin from September and they go till the mid of Jan। इतनी मतलब इतनी महीने से, इतनी दिन से परमेश्वर का जो जन्म दिन को सेलिब्रेशन करते हैं। And they continue celebrating all these months together। और आज प्रभु ने हम सबको जो मौका दिया उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। And today as we gather in the presence of the Lord, let's thank Him। यीशु मसीह जन्म किस तरफ जो हो गया करके पिछले को हम देखा है। We were meditating on the birth of Jesus and the events that took place on the 25th। परमेश्वर यीशु मसीह जन्म होने के बाद 8वां दिन जो मेरी और जोसेफ ने प्रभु को उनको अपना मंदिर में लेके आया है। And we see that after the birth of Jesus on the 8th day, Mary and Joseph brought the baby Jesus to the temple। वो क्यों लेके आना है उसके बारे में हम पढ़ना है। And why they have brought the child, we will meditate today। कौन सी कारण की वजह से उसने क्या किया उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। And we need to understand the events that took place there and the purposes behind it। इसके बारे में सबको मालूम तो है। Maybe you are aware about it। हालेलुया। Hallelujah। आज इसके बारे में प्रभु आपसे कुछ नया तरीके से कुछ बात करेंगे। And may the Lord speak something new to us today। हम वचन में जाएंगे लूका चैप्टर 2 वर्स 21। लूका दूसरा अध्याय 21 वचन And when पढ़ेंगे। 8 days were completed for the circumcision of the child, his name was called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए, जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। हम ये वचन में जो लिखा है आपको ये समझना है, जो 8वां दिन मेरी और जोसेफ यीशु मसीह के मंदिर में लेके आया है। And we see that on the 8th day, Joseph and Mary brought
the child Jesus to the temple. जो क्यों लाया करके, मतलब जो वर्स 23 में जो लिखा है, And it says that they brought Jesus, as it is written in the law of the Lord, every male who opens the womb shall be called holy to the Lord. जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। हर परिवार में, समझ लो उसी समय में जो मूसा का जो प्रमाण जो लिखा है, जो अपने जो परिवार में जो सबसे पहले जो बॉय चाइल्ड जो जन्म हो रहा है, वो परमेश्वर के लिए जो देना है। And here, as in the law, it's written in the Old Testament during the times of Moses, that every male child that is born first, that child is called to be holy to the Lord. और जो बलि देने के लिए परमेश्वर जो बताता है, And we speak about offering the sacrifice. तो उसके लिए इसका मतलब नहीं है सब बच्चों की जाके बलि देने के लिए वो भी परमेश्वर नहीं बता रहा And है। it's not that every child is born and they go and offer a sacrifice. क्योंकि क्यों लिखा है, जो बलिदान का जरूरी है उसके कारण हम पढ़ेंगे। And why such sacrifices we'll read. अगर जो अपने जन्म, अपने जो संतान से जो पहला जो बॉय चाइल्ड को बलिदान और नहीं करने के लिए, इसके लिए परमेश्वर ने कुछ योजना भी बनाया है। And we see that God has also prepared other plans apart from sacrifices. Verse 24. And to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or 2 young pigeons. और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करें। अब समझ लो, ये जो वचन में जो लिखा है, मूसा का प्रमाण में जो ये लिखा है, मतलब जो बॉय चाइल्ड को बलिदान देने के लिए। And it says in the Old Testament that during the birth of this male child they come and offer a अभी sacrifice. समझ लो, पहले जो जन्म में बॉय चाइल्ड नहीं हुआ, जो गर्ल चाइल्ड पैदा हुआ, And during the old time, suppose that instead of a male child, a girl child is born, लेकिन उसके बारे में लिखा नहीं है। and nothing is mentioned regarding that. लेकिन परमेश्वर का जो ऊपर हम जो विश्वास करते हैं, लेकिन अपनी संतान में जो लड़का लड़की जो भी है जन्म दे रहा है, परमेश्वर जो दे रहा है, वो परमेश्वर के लिए हमें समर्थन And करना है। whether a male child is born or a female child is born in your life, remember that you must offer them for the Lord and to the Lord. हम वचन में पढ़ेंगे मूसा ने किस तरह से जो बात किया, जब एक्सोडस चैप्टर 13 वर्स 11, निर्गमा 13 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। And it shall be, when the Lord brings you into the land of the Canaanites, as he swore to you and your fathers, and gives it to you, that you shall set apart to the Lord all that open the womb, that is every firstborn that comes from an animal which you have, the males shall be the Lord's. फिर जब यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तुम्हारे पुरखाओं से और तुमसे भी खाई है, तुम्हें कनानियों के देश में पहुंचाकर उसको तुम्हें दे देगा, तब तुम में से जितने अपनी अपनी माँ के झेटे हो उनको, और तुम्हारे पशुओं में से ऐसे हो उनको भी यहोवा के लिए अर्पण करना। हालेलुया। Hallelujah. हमें ये देखना है, जो अपने परिवार में जो सब जो पहले जो संतान जो शुरू हो रहा है, वो परमेश्वर को देना है। And every child that is born first to you, offer the child or give the child for the Lord. और जो आपको जो एनिमल्स है, जो भी मतलब जो भेड़ बकरी जो भी है, उसमें भी जो जन्म जो होता है, वो भी सबसे पहले परमेश्वर को देना है। And the Lord was also talking about offering sacrifices, where the first child, the child of the animal, if it's born, it's to be offered to the ये Lord. लिखा 12 में अच्छे तरह लिखा है, जो तुम्हारा संतान में जो पहला जो होता है, अगर वो बॉय होने दो गर्ल होने दो, लेकिन परमेश्वर के लिए हमें समर्थन देना है। And whether it's a male child or a female child, you must give it to the Lord. ये क्यों? अगर वो अभी जो नया जो संसार में पूछेंगे, क्यों परमेश्वर इस तरफ जो मांग रहे करके पूछेगा तो, And if at all in the New Testament, now being in the New Testament days, you are asking that why is God actually asking such a thing? हम 13 and 14 पढ़ेंगे। But every firstborn of a donkey you shall redeem with a lamb, and if you will not redeem it, then you shall break its neck. And all the firstborn of man among your sons you shall redeem. So it shall be, when your son asks you in the time to come, saying, What is this? That you shall say to him, By strength of hand that the Lord brought us out of Egypt,
out of the house of bondage. And it came to pass when Pharaoh was stubborn about letting us go, that the Lord killed all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of beasts. Therefore I sacrificed to the Lord all males that opened the womb, but all the firstborn of my sons I redeemed. Okay. गधी के हर एक पहलौटे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना। यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलौटे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। ये जो निकाह है अपने संतान के लिए, अपना बेटा बेटी के लिए मतलब क्या करना है, दूसरे एक बच्ची को नहीं तो एनिमल को मतलब बलिदान देने की जो कहते हैं। And in order to redeem your own sons, the Bible says you're offering the sacrifice of the animals. उसके बारे में जो प्रभु जो बता रहा है, अगर तुम्हारा बेटे अभी जो किसी को इसके बारे में पता नहीं है, क्यों परमेश्वर ईश्वर मांगते करके जो वर्ष 24 में जो 14 में जो लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ेंगे। और आगे के दिनों में जब तुम्हारे पुत्र तुमसे पूछे यह क्या है, तो उनसे कहना, यहोवा हम लोगों को दास्तों के घर से अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है। जो है पुराना नियम में जो लिखा है, जो मिस्र देश से जो गुलाम बन के जो मतलब वो उधर दे रहा था, वो क्षेत्र से परमेश्वर ने उनको उठा के बाहर लेके आया है। And as the people of Israel were in bondage, God saved them and delivered them from the Egyptians during that time. तो उसके कारण बस जो 14 में जो लिखा है, हिंदी में पढ़ेंगे। उस समय जब फिरौन ने कठोर होकर हमको जाने देना न चाहा, तब यहोवा ने मिस्र देश में मनुष्य से लेकर पशु तक सबके पहलौटों को मार डाला। इसी कारण पशुओं में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौटे नर है, उन्हें हम यहोवा के लिए बलि करते हैं, पर अपने सब जेठे पुत्रों को हम बदला देकर छुड़ा लेते हैं। हालेलुया। ये जो पुराना नियम है इस तरह लिखा है, अभी नया नियम में परमेश्वर यीशु मसीह आने के बाद ये जो आपको जाके बलिदान इस तरफ जो पशुओं को एनिमल को बलिदान करने की जरूरत नहीं है। And now in the New Testament, after the Lord Jesus Christ came, we do not have to offer any more sacrifices of animals or जो birds. बंदी गृह में थे उससे बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने इस तरह योजना किया And है। God prepared such things for delivering the people out of bondage. जो नया नियम में आप देखने जाएंगे तो परमेश्वर यीशु मसीह ने तुम्हें उद्धार दिया है तुम्हें बचाने के लिए। And in the New Testament, we see that we have been granted salvation by the Lord. तो इसके कारण क्या करना है, अगर तुम विश्वासी है तो अपने जो संतान को अपने बच्चों को परमेश्वर के समर्पण करो। And if you are a believer, first offer your children to the Lord. तो उसी अनुसार मरियम और जो जोसेफ ने मंदिर में उनको यीशु को लेके आया। And according to the law of the Lord, we see that Joseph and Mary brought the baby Jesus to the temple. क्योंकि जो यीशु मसीह जो स्वर्ग पिता से जो आया है करके मरियम को भी मालूम है, जोसेफ को भी मालूम है। And Joseph and Mary both were aware that Jesus came from the Father. आपको ये पता होना चाहिए, मतलब और किसी को पता नहीं है। And we know that others were not aware about such a thing. जो ये जो मरियम ने और यूसुफ ने जाके सबको ये नहीं बताया मेरे पेट में जो यीशु मसीह जो जन्म हो रहा है, और पवित्र स्वर्गदूत आके हमें जो बता रहा था यीशु नाम रखना करके किसी को उसने जाके बताया नहीं। And we see that Mary did not go and proclaim to the others saying that see I met an angel, the angel told me such a thing and the child that is born is the son of God. ये मान मौके भी वो क्या किया था, जो मूसा का जो प्रमाण के जो अनुग्रह उसको फॉलो करना है, आगे फॉलो करने के लिए वो क्या किया, माता पिता यीशु को मंदिर में लेके आया। And knowing that this is the son of God, in order to fulfill the law, they brought Jesus to the temple. और उन्होंने क्या किया, जो मूसा का जो प्रमाण का अनुसार उन्होंने अपने बलिदान कर दिया है। And they offered sacrifices according to the law. इट इज इक्वल टू जो मतलब यीशु मसीह को बलिदान दिया करके उसको सोचने के लिए कारण है, जो बच्चे को, दो बच्चे को उन्होंने सैक्रिफाइस जो किया And in है। order to offer the male child, the first child, they offered the sacrifices. हम इसके कारण आज परमेश्वर जो तुम्हारे साथ में जो कहता है, तुम्हारा जो भी बेटा बेटी है सबसे पहले परमेश्वर के समर्पण करो। And if you have children, son or daughter, offer your children to the Lord.
जो परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए सबसे पहले अपनी फैमिली के परिवार को परमेश्वर को भाई मान के परमेश्वर के लिए समर्पण करो, तब परमेश्वर तुम्हारे संतान को संभालेंगे, तुम्हारे संतान को आशीष करेंगे, When you तुम्हारे offer- संतान को उच्च स्थान में लेके आएंगे। When you offer your children, your family to the Lord, when you live for the Lord, God will lift your family up and bless it. हालेलुया। Hallelujah. अगर आपको संतान को परमेश्वर के राज्य में लेके जाना है, परमेश्वर को वचन कर से चलाना है, तो सबसे पहले हमें एक तो करना है, अपने परिवार को हमें सबमिट करना है You परमेश्वर have to को। offer yourself to the Lord. That's when God can start working in your life. हम वचन में वापस पढ़ेंगे, लूका चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। We turn to Luke chapter 2. तो उसने क्या किया था? परमेश्वर को समर्पण यीशु मसीह के समर्पण कर He दिया said Jesus was offered at the temple. और उनको तो बलिदान कर दिया है। They offered the sacrifices. और उसी समय में ये देख लो वर्स 25, जो मंदिर में क्या हो गया है। And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. यरूशलेम में शिमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। ये जो सिमियोन का जो व्यक्ति है, ये तो क्या है? सबसे पहले ये देख लो, धर्मी और भक्त था। धर्मी और भक्त मतलब परमेश्वर का आज्ञा पालन करके परमेश्वर पृथ्वी में आने वाला है करके वो इंतजार करता था। And we see that this Simeon was a devout man, and he was there waiting for the Messiah to come. और उसका अंदर पवित्र आत्मा थे And the word says that he was filled with the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा द्वारा उनसे जो बात किया, जो किया है, वह 26 में जो लिखा है। And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा। हालेलुया। Hallelujah. कितनी महान है वो व्यक्ति। And just see what a great man तो he देख is. लो, वो जो बता रहा है आत्मा से जो बात है, तब तक तुम मरेगा नहीं, तब तक तुम मेसिया को देखे भी नहीं। And the Holy Spirit declared to him that you shall not see death till you see the Messiah. और उन्होंने क्या कहा? So he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। Hallelujah. ये मेरे प्रियो, अगर आप विश्वासी है तो क्या है, अभी हमने क्या करना है? यीशु मसीह के देखने के लिए हमें इच्छा चाहिए। My beloved, when you are a believer, you must have the desire to see Jesus. आपको पता होना चाहिए अभी यीशु मसीह छोटा बच्चा नहीं है। And you must be aware that Jesus is no longer a small child. और आप ये समझ लीजिए, यीशु मसीह पृथ्वी में आए और बड़ा होके हमारे लिए क्रूस उठाए, जो मर गया और जी उठा है, स्वर्ग राज्य में है। And you must understand, Jesus came into this world, he died on the cross, he rose again on the third day, and today he's seated in heaven. और उन्होंने अपने पवित्र आत्मा की तरफ पृथ्वी में दिया हमारे And he लिए। has given us his Holy Spirit. और इस तरफ से अभी हमें क्या करना है? छोटा बच्चा यीशु को मसीह को नहीं ढूंढना है, अभी हमें ये देखना है जो आने वाला यीशु मसीह, जो राजा को हमें इंतजार करना है। And now we are not seeking Jesus as a small little child, but now the Lord Jesus comes as a king. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप विश्वासी हैं तो आपके जीवन में यीशु मसीह की देखने के लिए आपको मन चाहिए। And if you're a believer, you must have a heart and a desire to see Jesus. मेरे यीशु मसीह प्रभु राजा आने वाला है, उसके लिए हमें तैयारी करने के लिए क्या करना है, किस तरफ जो करना है, उसका बारे में सोचना And चाहिए। Jesus is coming soon, and you must be always thinking about how I am supposed to be जो prepared for his किस coming. तरफ जो सिमियोन करके जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, जो परमेश्वर की शांति के लिए, जो परमेश्वर का मेसिया को मैं देखेंगे करके वो इंतजार में था,
वो परमेश्वर उनको प्रकट कर दिया, उनको दिखा And we दिया। see that because Simeon was waiting on the Lord to see the fulfillment and see the Messiah, in similar way we have to wait on God. और जो सबसे पहले यीशु मसीह का आत्मा में उठा के जो बता रहा, प्रभु को धन्यवाद करते जो बता रहा है, हे जो प्रभु हमने आज आपका जो पुत्र को मैंने दे दिया है, आज मैं सल्वेशन की देख लिया करके वो प्रभु को धन्यवाद करते And हैं। then he says, Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation. और उन्होंने मरियम को और यूसुफ को आशीष कर लिया। And then he blesses Joseph and his mother. और जो कंटिन्यू ये वचन आप घर पे पढ़ लिएगा, Later on you can continue reading this. उसमें जो आशीष करके जो बात करने के समय में, और दूसरा जो एक व्यक्ति आ रही है, And we see that while all this was happening, there's another person who comes in the scene. वर्ष 36। Now there was one Anna, a prophetess, the daughter of Phinehas, and of the tribe of Asher. She was of a great age and had lived with her husband 7 years from her virginity. And this woman was a widow of about 84 years, who did not depart from the temple, but served God with fastings and prayers night and day. अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी। विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। 84 वर्ष से विधवा थी। ये जो बात आप समझते हैं, 84 years मतलब इतनी उम्र की जो एक स्त्री है, We see that she was an old woman and she was around 84 years और उनका जो यंग एज में उनकी शादी हो गई, and she got married young. और कितनी साल उनके साथ में, मतलब 7 साल अपने पति के साथ रहता था। She lived with her husband for 7 years. और अभी वो 7 साल के बाद वो उनका पति का मृत्यु होने के बाद उन्होंने 84 years तक वो क्या करती थी? मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हालेलुया, मंदिर को मतलब कलीसिया को, चर्च को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके मतलब जो इन्होंने क्या करती थी, सबसे पहले उपवास और प्रार्थना करती रहती थी। And we see that she was serving God through fastings and prayers. किसके लिए वो उपवास प्रार्थना करती थी? And what is the purpose behind fastings and prayer? अपने के लिए For herself? नहीं, No. उन्होंने जो प्रार्थना जो किया, आगे कंटिन्यू करो, मालूम पड़ेंगे। उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम से छुटकारे की बाट जोते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। अब ये देख लीजिए वर्ष 30 इसमें जो 38 में जो लिखा है, जो अन्ना जो स्त्री है, जो विधवा है, वो उपवास और प्रार्थना करती रहती थी। We see that this Anna, who was serving God in the temple, she was always serving through fastings and prayers. तो अगर पवित्र जीवन बिताए तो किस तरह से परमेश्वर जो प्रकट करते हैं। And here we see that she was totally committed to the Lord, living a holy life for Him. अब देख लो जो क्या बताती है, वो 38 में जो लिखा है, And coming in that instant, she gave thanks to the Lord, spoke of Him to all those who looked for redemption in Jerusalem. उनको कैसा पता है ये यीशु मसीह ये मसीहा करके, उनको कैसा And पता how है? does she know and have the revelation that this child is the क्योंकि वो Messiah? भविष्यवक्ता थी, Because it says that she's a prophetess. पवित्र जीवन बिताया था, She was living a holy life. और परमेश्वर का आत्मा उनका अंदर है। And the Spirit of the Lord was with her. जो यीशु मसीह के देखने के बाद तुरंत वो पता चला यही है मसीहा। And on seeing Jesus that instant, she recognized that He is the Messiah. और उन्होंने सबको जो बताने शुरू किया, यही मसीहा आ गया करके। And she went and proclaimed to all the people who were waiting for the redemption, who और were waiting for उन्होंने the यीशु Messiah. मसीह के बारे में सबको बताती थी। She went and spoke about Jesus. हालेलुया। Hallelujah. अगर आप पवित्र जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर को देख सकेंगे। Remember, when you are living a holy life, you will be able to see Jesus. अगर परमेश्वर का जो आत्मा को भी आप पहचान लेंगे, And you will understand the things of the Lord, the और Spirit शैतान of का God. आत्मा को भी आप अंडरस्टैंड And करेंगे। you will understand even the spirit of evil. तो ये जो बात किधर से शुरू होता है, अगर आप परमेश्वर को पर अपने जीवन को समर्थन करने समय में ये जो परमेश्वर All तुम्हारे जीवन these में आ जाता things, है। these revelations and the blessings you receive when you commit to the Lord and surrender to Him. क्योंकि उन्होंने जो आशेर जो गोत्रों में जो आया है, वो जो स्त्री जो है, ये मतलब उन्होंने उनके पवित्र जीवन शुरुआत से शुरू किया है
अपने यंग एज में से शुरू किया है और परमेश्वर के राज्य के लिए वो इंतजार करती थी। And we see that it's mentioned here, she was from the tribe of Asher and she has lived a life holy to the Lord since her youth. हम वचन 40 पढ़ेंगे। जो यीशु And the child grew and became strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Luke chapter 2 verse 40. और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर क्या क्या दिया है परमेश्वर ने? And what are the things granted to Jesus here? ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, He says सामर्थ दिया। wisdom. He said he was strong in spirit and he was having God's grace. और परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ में थी। The grace of the Lord was upon him. वही ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ और अनुग्रह परमेश्वर यीशु मसीह और तुम्हें और हमें देने के लिए तैयार है। And that same strength, the spirit, the wisdom and the grace God wants to grant to us also. हालेलुया। Hallelujah. हमें यही समझना है, ये जो परमेश्वर जो सिर्फ यीशु मसीह के नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमें भी वही अनुग्रह दे रहा है। And as he's granted these things to Jesus, by grace we receive the same things from the Lord. आमीन। Amen. अब इसका बारे में आगे नेक्स्ट वचन में जो लिखा है, उनका माता पिता जो यरूशलेम के लिए हर साल जाता था, We उसी see समय that में his parents went to Jerusalem every year. ऐसा एक बार उसको उधर मतलब जो फंक्शन में जाने के समय में और वहां से यरूशलेम से वापस आने के टाइम जो बहुत रश होता है, क्योंकि हर साल ये लोग पूरा फैमिली के थ्रू हर सीजन जाते रहते थे। And we see that in order to celebrate the feast of the Passover, they used to go as a family, relatives and friends together. तो रिटर्न होने के टाइम में यीशु मसीह भी साथ में आते करके वो लोग जो वापस आ रहा था, And as they were returning, they assumed that Jesus was with them. लेकिन यहाँ आके देखने के बाद यीशु मसीह दिखता नहीं है। And after that, they came to know that he wasn't there among them. सोचेंगे सब गर्दी के साथ में दूसरे के साथ में घर पे पहुंचेंगे आएंगे करके, And they thought maybe the relative, he's with one of the relatives, he will come home. और आके देख लिया, सबको इंक्वायरी किया, मतलब कोई भी बोलता पता नहीं है। And when they came and they inquired, they found out that he was missing. तो वचन में लिखा है वापस यरूशलेम को मेरी और योसेफ वापस ढूंढ के गए यीशु And we मसीह। see that it's written that Joseph and Mary traveled back to Jerusalem. Verse 46. Now so it was that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, both listening to them and asking them questions. और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। हालेलुया। Hallelujah. और किस तरफ से जो 3 दिन के बाद, मतलब जो 3 दिन क्या कर रहा था परमेश्वर यीशु मसीह, वो उनके साथ में बात करता था। And we see that they found him after 3 days, and these 3 days Jesus was there discussing and speaking about the word of God. और 47. And all who heard him were astonished at his understanding and answers. जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे, क्योंकि उनका अंदर पवित्र आत्मा का मर्यादा परमेश्वर का अनुग्रह के साथ में थे। And we see that Jesus was filled with the Holy Spirit. He was having the grace of God upon his life. अगर तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हारे पास भी ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, सामर्थ देंगे। If you have the grace of the Lord and the Spirit of the Lord with you, He will grant you also wisdom and understanding. Verse 48. So when they saw him, they were amazed, and his mother said to him, Son, why have you done this to us? Look, your father and I have sought you anxiously. जब वे उसे देखकर चकित हुए, उसकी माता ने उसे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरे पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। और यीशु ने क्या जवाब दिया है? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? आपको ये वचन पढ़ के आपको क्या लग रहा है? And after reading this answer of Jesus, what do you feel? यीशु मसीह क्यों इस तरफ जो जवाब दे रहा है? And look why he's answering such a thing. अब देख लो, तो क्यों मुझे ढूंढ रहे हो? He's saying, why did you seek me? क्योंकि मेरा पिता का जो काम करने के लिए मैं करने वाला करके तुम्हें पता नहीं है क्या? Did you not know that I must be about my father's business? ये किधर से शुरू होता है? And where is this beginning? अब बताओ। Can you tell us? ये जो छोटे बच्चे से
परमेश्वर को अपने बच्चे को बलिदान दे दिया है, अपने बच्चे को समर्पण कर दिया है, इसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह शुरू होता है। Remember, because you dedicate the child to the Lord, you give the child, offer the child to the Lord, the grace of God begins from there, and that's the reason the child is aware आपका about his बेटा purpose. बेटी को परमेश्वर के ऊपर समर्पण करके उनको परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए उनको हर दिन सिखाना पड़ता है। And every day you must teach your children to grow in the Lord and draw them closer to the kingdom of God. जो आपको बैप्टिज्म छोटे बच्चे को कृष्णी नाम डालने के समय में आपका जो पास्टर आपसे यही पूछ रहा है, तुम तुम्हारा बेटा को बेटी को पवित्र जीवन बिता के और परमेश्वर के राज्य में लेके आने के लिए उनको सिखाएंगे कि नहीं करेंगे करके। And during the time of dedication, the pastor asked the parents that will you bring up this child in the fear of the Lord and offer this child to God? आप क्या जवाब दे रहे हैं? And what is your answer? हम वैसे ही करेंगे। Yes, yes, and you'll say yes, I will do that. लेकिन आप करते हैं क्या? But do you really do this? कभी आप उसके बारे में सोच रहे क्या है? Have you ever thought and considered these things? बच्चे का नाम डालने से कुछ भी खत्म नहीं हुआ। Just because you kept a name does not mean everything is over. आप उसी दिन से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही हो रहा है, उनको अब खाना दे रहा है, कपड़ा दे रहा है, रहने के लिए सब कुछ दे रहा है, लेकिन उससे अधिक परमेश्वर का वचन को उनको देना है, परमेश्वर के बारे में बार बार उसके बारे में बात करना है, परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करना है और परमेश्वर से भाई मान के जीने के लिए ये सिखाना जरूरी है। And while you provide for the child food, clothing, shelter, apart from that you have to teach the child the word of God, the fear of the Lord, and you must bring up the child in the ways of the Lord. और एक टाइम जो परमेश्वर के सिखाने से काफी नहीं है, हर दिन वचन में जो लिखा है, तुम घर पे बैठने से, उठने से, जाने से, आने से हर पल मेरे बारे में तुम्हारा बेटा बेटी की सिखाओ करके उसने वचन में जो लिखा है। And we see that just one day teaching the children is not enough. Every day, as the word says, while you sit, you rise, you walk, you sleep, you must speak about the Lord. अपने बेटा बेटी गलत रास्ते में जा रहे टाइम उसी समय में उसको रुका लो, ये बेटा ये नहीं करना है, ये बेटी ये नहीं करना है, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है करके तुमको शुरुआत से तुम सिखाने से। And while your child is going astray, it's up to you to immediately stop them and tell them, my son, my daughter, this is not the path where you're supposed to go. आने वाले दिनों में वो पवित्र जीवन बिताएंगे। And while you correct them, you guide them, they will start living a holy life for the Lord. परमेश्वर के राज्य के बारे में वो सोचेंगे। And they will start considering and thinking about the kingdom of God. और उनका भी मन में दिन रात को परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचेंगे और परमेश्वर के लिए वो जिएंगे। And while they meditate on these words, they will start living for the Lord and they will live a holy life जो for ये बता God. रहा यीशु मसीह जो बता रहा मैं मेरा पिता का काम करने वाला है, तुमको नहीं पता है करके वो पूछ And रहा Jesus है। is questioning them that, do you not know that I will be about my Father's business? वो जो बताया वो समझता नहीं है। And then verse 50 says that they did not understand the statement which he spoke to them. और उन्होंने यीशु ने आगे 51 में पढ़ेंगे। Then he went down with them and came to Nazareth and was subject to them. But his mother kept all these things in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. तब वह उनके साथ गया, नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। उसमें ये जो लिखा है जो माता पिता का वो ओबे किया, ऑर्डर किया है, ऑर्डर क्या करके लिखा है उसमें। And it says that when he came back with them, he was subject to his parents. तो क्यों यीशु मसीह ने उनको मरियम का और यूसुफ का आज्ञा पालन किया है? And why did Jesus submit himself to his parents? वो बोल सकता था मैं परमेश्वर का बेटा है, मैं जो पृथ्वी में तुम सबको बचाने के लिए जो आया है, तो करके वो बोल के इनको आज्ञा पालन नहीं कर सकता था। And he could have said that I am the Son of God, I came into this world to save the people, and he could have not obeyed them. परमेश्वर ने यीशु मसीह इसके कारण हमें सिखा रहा है अपने माता पिता का आज्ञा पालन करने के लिए मैं किस तरह जो आज्ञा पालन किया करके यीशु सिखाता है। And Jesus is teaching us as an example that just as I am subject to them, you must also be subject to your parents. अब ये बात अच्छी तरह याद रखना है, अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, पवित्र जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले परमेश्वर को भय मांगना है। And in order to move ahead in your maybe physical life or your spiritual life, obey the word of God first. और परमेश्वर का राज्य के लिए हमें काम करना है। And start working for the kingdom of और God. दूसरा जो है
अपने माता पिता का आज्ञा पालन करना है। And you must be subject to your parents. अगर इस तरफ करने के समय में क्या हो गया उधर, जो वर्ष 52, परमेश्वर यीशु मसीह ज्ञान से, बुद्धि से, परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से आगे आगे बढ़ते रहा था। And we see that Jesus continued to increase in wisdom, in stature, and in favor with God and men. अगर मेरे प्रियो, आज जो ये संदेश में यही जो है, सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए हमें सोचना है और परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करना है उसके बारे में हमेशा देखना है। My beloved, you have to seek first the kingdom of God, and you must see to it that what you can do for the kingdom. और जो वचन में जो लिखा है, जॉन चैप्टर 16 वर्स 23 में जो लिखा है, परमेश्वर जो कहता और है, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें जॉन चैप्टर 16 वर्स 23, And in that day you will ask me nothing. Most assuredly I say to you, whatever you ask the Father in my name, He will give you. यीशु ने कहते हैं, तुम मेरे पास कुछ भी नहीं मांगे, लेकिन मांगो मेरे नाम से और पिता परमेश्वर तुम्हें देंगे करके। And he's saying that till now you have not asked me anything, but in that day you have not asked, but now I say to you, ask whatever you want in my name, and He shall give it to you. उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। ये इससे उससे क्या मतलब है? यीशु मसीह के जन्म के बाद में जो आज्ञा पालन करने से और इससे क्या मतलब है? And what is the connection between the birth of Jesus, obedience, and this? अब पवित्र जीवन बिताने समय में जो जीवन में कठिन समय आएगा, When you live a life for the Lord, you are living a holy life, you might face situations. सफरिंग देंगे, Maybe you're going through tough maybe time. कोई बीमारी आएगा, Maybe you might go through some sickness. लेकिन जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम्स में है, लेकिन परमेश्वर एक मिनट तुम्हें चुपचाप छोड़ेगा नहीं है। And but whatever you go through doesn't mean God is going to be silent. इसके लिए जो बता रहा है, तुम मांगो मेरे पिता के नाम से, मेरा नाम से तुम मांगो, मेरे पिता तुम्हें देंगे करके And उन्होंने Jesus वादा is किया saying है। that you ask the Father in my name and He shall give it to you. जो कल जो अपने परमेश्वर ने जो बात किया था, परमेश्वर की शांति के बारे में, जो वर्ष 33 में जो लिखा है, जॉन चैप्टर 16 वर्ष These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. 16. तो उसमें जो लिखा है, 33 में जो लिखा, वचन में जो लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर यीशु मसीह जो कहता है, तुम्हारा जीवन में कठिन समय आएगा, तकलीफ आएगा, क्योंकि मैं ये जगत से, ये संसार से मैं जीत लिया, उसी तरफ से तुम्हें भी तुम भी जीतेंगे। And Jesus is saying that in this world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. इसलिए स्थिर हो जाओ। And so you take heart. मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में आज के समय में जो अंतिम साल का ये संडे है, परमेश्वर यही जो कहता है, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन को आशीषों से बदलेंगे। And even this last Sunday of the year, my beloved, God is telling He will bless you. तो परमेश्वर जो कहते हैं, मेरे नाम से तुम पुकारो। He's saying, ask in my name. तो हमारे नाम से पुकारने के हम देंगे, पिता देंगे कि तो क्या करना है, हमें उनका आज्ञा पालन करना And in है। order to call upon the name of the Lord and ask the Father, start obeying God's commands. ये जो अभी का जो सिचुएशन को देख के आप डरना नहीं है। Don't look at things around you and fear. अभी जो सिचुएशन का आ रहा है, लेकिन आपको विश्वास रहना है, मेरे यीशु मसीह वापस आने वाला है, उनके लिए हम तैयारी करना है। ये जो सामने दुनिया से जो आते हैं देते हैं, लेकिन मेरे प्रभु मुझे संभालेंगे। And don't look at the situations or the tribulation that you go through. Remember, Jesus Christ is coming soon, and you have to prepare yourself for His coming. तो क्योंकि कठिन समय में परमेश्वर किस तरह जो विजय पाया, उसी तरफ से तुम्हें भी परमेश्वर विजय पाने के लिए मदद करेंगे। And
in the tough situation, in the tribulation, as Jesus overcame everything, He's telling you that you shall also overcome along with Him. आज जो परमेश्वर जो बात कर रहा है, अपने संतान को, अपने बच्चों लोग के परमेश्वर के बारे में सिखा लीजिए। And teach your children about God. फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दीजिए Give God first place, और बाकी सब सेकंड है। and after that let everything आपका follow. जो भी है बाकी सेकंड में तो फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर को दीजिए और परमेश्वर को भाई मांगे। हम जीने के समय में जो भी चीज हम मांगेंगे परमेश्वर हमें दे देंगे। And when you live a life of the fear of the Lord, and when you ask of Him anything in His name, He shall grant it to you. हालेलुया। Amen. आज Hallelujah. 31 तो पहले जो प्रभु जो तुम्हारे से जो वादा किया है वो भी प्रभु देने के लिए तैयार है। And God is able to grant you the things He's promised to you even before this year ends. ये जो वचन में जो लिखा है, अगर ये अंधी समय में जो वचन में लिखा है, जो यीशु मसीह का दोनों साइड में दो चोर को जो उनको भी साथ में क्रूस में मारा हुआ था। And we see that during the as Jesus was hanged on the cross, there were two other robbers also hanged on either side. लेकिन उसी में से एक तो प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु को देख के वो मान लिया, विश्वास किया यही है मसीहा करके वो विश्वास किया, आपने ले लिया और परमेश्वर ने उनको बचा लिया। And we see that one of them turned, repented, and he accepted Jesus, and God saved him. क्योंकि वो मरण से नहीं है, ये नरक में जाने के लिए उसने परमेश्वर ने उनको बचा, आनंद का जीवन देने के लिए। God did not save him from death in this world, but God granted him eternal life. अगर आज तक तुम्हारा जीवन जो अगर परमेश्वर को छोड़ के पीछे मुड़ गया तो परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। If at all you have turned back from the Lord, if you've gone far away from Him, come back to Him today. तुम्हारे संतान के भी, तुम्हारे बच्चों के भी परमेश्वर के पास लेके आ जाओ। Bring your children, your family back to God. परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे। God bless you. आमीन। Amen. आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। Let's परमेश्वर यीशु मसीह आज नया चंगाई करने वाले तुम्हारे जीवन में, आज चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। इसके लिए विश्वास के साथ हम परमेश्वर से मांगेंगे। प्रभु परमेश्वर आपको हम धन्यवाद देते प्रभु। Father, we thank you at this time. आप अच्छे समय दिया उसके लिए धन्यवाद करते Thank you प्रभु। for this wonderful time you've given आपने us. अच्छे सुंदर वचन दिया इसके लिए हम धन्यवाद Thank देते you for the प्रभु। wonderful word that you've spoken प्रभु to us. आप यीशु मसीह के ऊपर कितनी आपने ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ और अनुग्रह जो किया है उस तरफ से हमें भी आप दीजिए प्रभु। Lord, just as you granted Jesus Christ the grace and the favor and the wisdom and the understanding, we pray it will be granted to us also. और जो किस तरफ से जो प्रभु जो सिमियोन करके जो भविष्यवक्ता प्रभु आपके लिए जो इंतजार जो किया है उसको आपने प्रकट करके दिया, दिखा दिया उनको। इस तरफ से आप वापस आने वाला है उसको आपको मिलने के लिए हम सबको मदद कर लीजिए प्रभु। Just as you revealed to Simeon, Lord, about your coming, about the Messiah, the same way reveal to us about your second coming. हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। अभी प्रभु एक एक परिवार के ऊपर आप दया कर लीजिए प्रभु। Lord, we pray and thank you for this day, and we pray for every family that you'll be gracious. वे भी प्रभु आपको छोड़ के पीछे मुड़ गए होंगे, लेकिन अभी वापस जो जो व्यक्ति आपके पास जो आ रहा है कृपा करके दया करके स्वीकार कर लीजिए। Lord, maybe they have turned back from you, but even today as they come and return to you, accept them. और एक बार क्षमा करके अपना बेटा बेटी बना लीजिए प्रभु। Lord, forgive them, and we pray that you will take them as your own. परिवार में प्रभु अपने माता पिता का आज्ञा पालन करके आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए हर बच्चों के लिए प्रभु मदद कर लीजिए। We pray you'll help every children to submit to their parents and to live lives that please you. कोई भी बच्चों को अपने शैतान के जाल में फंसना नहीं चाहिए प्रभु। We pray that children will not be, Lord Father, entangled in the things of the evil one. शैतान से विजय पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा से हर बच्चों को भर दीजिए प्रभु। We pray that you grant them victory and they will overcome from every problem that Satan grants to जो them. हर घर पे जो प्रभु आपने जो वचन का अनुसार जो चीज के लिए मांगो मैं देंगे, मेरे नाम से तुम पुकारो मेरे परमेश्वर मुझे देंगे करके जो आपने जो वादा किया है। And as you promised us now that you ask in my name and the Father will grant it to you, and we ask you. अभी आपका वचन के विश्वास के द्वारा जो मांग रहा है सबके जीवन में कार्य कर And just as your word said, as we ask you by faith, you will work in everybody's life. आपका नाम महिमा के लिए Let your name be glorified. आपने हम सबको प्रार्थना सुन लिया और उत्तर दे दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you that you have heard our prayer and you have answered. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। We ask in the name of Jesus. आमीन Amen. आमीन। Amen. प्रभु आपको आशीष दे दिया है, May the Lord Jesus bless you. आपको वापस बुलाता है प्रभु। And He's calling out to you again. आपका जीवन को आप ध्यान कर लीजिए, प्रभु आप संभालेंगे। And when you take a turn and you come back to Him, God will take care of you. आमीन
Amen. God bless you all. Thank you so much for joining along with us. धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। आप सबको परमेश्वर के नाम से हम आशीष करते हैं। और एक और खुशखबरी है, जैसे हमारा गीत ये आसमान द रेवलेशन रॉकर्स बैंड के द्वारा रिलीज हुआ है, आप कृपया करके वो YouTube लिंक क्लिक कीजिए, वॉच कीजिए। हम विश्वास करते हैं ये गीत आपके जीवन में, आपके परिवार को आशीष देगा। हालेलुया। आप सबका धन्यवाद कहना चाहते हैं, सभी की प्रार्थना के लिए, सपोर्ट के लिए। आप जैसे हमारे साथ जुड़े रहे, हम धन्यवाद कहते हैं और विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में महान कार्य परमेश्वर हमारे जीवन में करेंगे। आमेन। कलीसिया हम भी विश्वास करते हैं कि कलीसिया को भी आगे बढ़ाकर परमेश्वर और कार्य हमारे हर एक के जीवन में करने वाले हैं। प्रभु आप सबको आशीष करे। जुड़ते रहिए हमारे लाइव सभा में, और जो इन पर्सन में भी हम जब जुड़ेंगे, वी प्रे दैट यू ऑल विल जॉइन अलोंग। जो भी कलीसिया वसई में ढूंढ रहे हैं, नहीं तो विरानाला सिपारा मुंबई एरिया में आप ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि परमेश्वर की नाम आपके द्वारा और हमारे द्वारा महिमा होते रहे। हालेलुया। थैंक यू सो मच। आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, द हार्ट ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज। आप हमारे साथ जुड़े रहे। पास ऑन आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर कुछ प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें फोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास करते हैं कि हमारे प्रार्थना को प्रभु उत्तर देंगे। We will pray for you. If at all you have any prayer request, you can call pastor, you can write to us, you can comment, you can message to us, and we will pray for you. And we believe that the Lord will answer our prayers. Hallelujah. As this year comes to an end, इस साल अंत में खत्म होने वाला है, प्रभु ने हम सबको संभाला, इसलिए ताली बजाकर हम यीशु को धन्यवाद करेंगे। We will thank the Lord. That thank you Jesus, that as we end this year and we enter a new year, we believe God will do great and mighty things in our life. Amen. May God bless you all. हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। You can repeat this prayer after me. मेरे पीछे ये प्रार्थना दोहराइए। तू मुझे सचमुच आशीष देता, मेरा देश बढ़ाता, तेरा हाथ मेरे साथ रहता, तू मुझे बुराई से ऐसे बचा रखता कि मैं इससे पीड़ित न रहूं। आमेन। आशीष देंगे। हमें बचाने के लिए, अनंत का जीवन देने के लिए जो आया, जो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता और अभिषेक हम सबके साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे।